Yes, Rahul, I can hear you. Okay, Durgesh. So you can continue now. Yeah. Okay. Uh, so, uh, just I'm repeating the few instructions. To avoid the background noise, we request you to mute your smartphone, laptops. If you have any queries, or if you are not clear with any point, you can raise your hand. Uh, there is a raise your hand button in a screen. If you raise the hand, we will stop and we will get your queries, or we will respond to your queries. Okay, so there are some limitations to Zoom application. We can run this meeting for 40 minutes only. Then again, we need to redial, disconnect this meeting and redial again. Okay, so if our meeting get extended beyond the 40 minutes, we will again need to relog in. Okay, please consider these points in mind. Okay, moving to the next point. Today's speaker, myself, Durgesh Pawar. I'm finance and accounts profession since last 12 years. Almost few of the team members or a few of the participants know the another speaker, or another speaker is Rahul Raskar, who is also in expertise in Excel and have uh, 10 years plus work experience in finance and accounts. So he's also virtual trainer. He's also conducting the virtual trainings for Infosys and outside the Infosys as well. Okay, so moving to the next part. Rahul, can we wait for a few minutes, or we can start with the? No, Durgesh, we can start because it's already Okay. 34. So sorry, Yeah. 554. Okay, so we can start. Yeah. So can we please move to the topics, Yeah, sure, Durgesh. so that everyone can look at this. Yeah. So in today's session, we are focusing to cover these topics. So we will have introduction to Excel. We'll start with a ribbon user interface. We'll start with going back at a file menu. We will show you how to customize the quick access toolbar. We'll also focus on the moving around the worksheets. Getting on the ground floor, when we are actually working on it, we will start with the home menu so that we can have an initial stage for this. So this is the brief overview how we are going with this session. Okay. So now, Rahul, can you please move to the introduction? Yes, yes, Durgesh. Yeah, please. Yeah. So starting with Excel, just a brief overview for all of you. The Excel is a spreadsheet program that allows to share, work, or analyze the information. Excel majorly deals with the numbers. It includes, we can sort, advanced calculations, we can perform graphs, we can create dashboards, we can create reports, we can analyze numbers using the Excel. So basically, business cannot work on now in the current days. A business or account department is working on the Excel, we can say. Okay. So simple Excel allows us the simple calculations. Excel help us to simplify the complex calculations. Excel helps to get the work faster. In Excel, we can automate the repetitive tasks. If we have a certain task that needs to be performed on a day-on-day basis, we can automate those tasks and perform it on a single click. So these are the advantages of Excel. So we can use it. Okay. So starting with the Excel screen, when we go to the Excel screen, Rahul, can you please move to the next step? Yes, Durgesh. Actually, I'm allowing two people, so that's why I'm in part of Okay. the screen. Okay. Yeah. Mm-hmm. Okay. So when we start with the Excel, you can see on the screen, there is a quick access toolbar, which is mentioned over here. Okay. We can see the title bar over here. We can see the file tab. Okay. Then we have a ribbon. So this is all we can see is a ribbon. Okay. Then we have a worksheet area.
In worksheet area, we can see the row bar, we can see the column bar at the left side. We have the status bar at the bottom. We have the sheet area over here. Okay, we can see the view buttons. These are the buttons that can be used for the view objects. Okay, we can zoom the cell contents, or we can zoom the worksheets using this zoom control area. Okay, so this is the basic. We can see the first introduction of work Excel sheet. Okay, Durgesh, sorry to Okay, interrupt. I guess you guys are familiar with this one. Yeah. Yes, Sorry, Rahul. Durgesh. So there is small, I think in this slide there is small changes. So here it's mentioned row bar. It's not a row bar. It's a column. Yeah, This actually, is a row. Okay, this so is the that's row. the Yeah, correction only. Yeah. you can change this. Yes, no worries. Okay. Okay. I guess you guys are familiar with this screen. So can we, Rahul, can you please move ahead with your session with next topics? Okay, no problem. So hi all, welcome all. Okay, so we'll start with the session. Before starting, I'll request you, and I'm hoping that everyone is safe, everyone is at home, and we are utilizing this time. Okay, so this is a very big issue currently world is facing. Okay, so hope it will end soon. So meanwhile, we will utilize our time and utilize increase our skill. Okay, upgrade our skill. Maybe you guys already aware about the Excel, maybe you know very well more than us, but still I'm trying to explain my side where I can give the, some tips that will help you in future. Okay, so first I think I'll start with Excel. Okay, so I'll just close all these Excels because I'll start from the scratch because most of the people are new to the Excel. So I'm giving some hints to how to open the Excel and all. So here, if you just type Excel, okay, so here you will see the Excel. So currently I'm using Excel 2010 version. Okay, so I think you all are okay with the Hindi and English language. Most of the part I will cover in Hindi and English language only. Okay, because कुछ लोगों को अगर कुछ questions है समझ में आया तो just raise your hand so that I can translate in Hindi. Okay. So here I'm currently using the 2010 Excel. In this Excel, if you see, so there are versions for the Excel. Okay, so every application has versions. So currently I'm using 2010. There are 15, 17, 17 is there. Okay, and there some people are using 2007. So 2007 functions will be not available in 2010. Okay, because this is upgraded version, but in 2015 you will find all the functions of 2010. Okay, so this is the basic point. Now if you see here I have added the Excel shortcut here on my start bar or task bar. So how I have added that, so I just enter Excel, I just type Excel here, and when I got this application here, I'm just clicking here and using pin to start, and there is one more button, pin to taskbar. Okay, so once you click there, that is removed from here. If you want to add, you can just click here and add Excel in your taskbar, so that when in future if you want to open, you can just simply click on this Excel. You will be able to open the Excel very quickly. Okay, once you open this Excel, okay, so today we are going to cover only two topics. This is the file menu and home menu. I'll try to cover these two topics, and remaining tab we will cover in following sessions, not now. Okay, so I'll quickly start with the file menu. Okay, in files menu we'll not go in the deeper because there are some beginners also in this class, so I'll not go into that detail. So that will cover into next session. So Durgesh, I'll make you as a host because there are 2-3 people. Just wait a minute because there are 2-3 people in waiting room. So I'll just quickly allow them because I think I missed them to add in. Okay, so now I'll not allow anyone because I think we are a full house. We have 30 people in the session, so that's okay for us.
Okay, so I'll start with the file menu. So Durgesh already covered the sheet area, where is the sheet, how we can enter the data, that you guys already aware. Okay, so I'll quickly start with the file. In file, you once you click on this file option, you will find there are so many options here, and also there is some recent workbook and recent places are there. So what is this for? Okay, so when you are using one Excel repeatedly, or you are using one path repeatedly, that time you have to always you have to remember that path, or you have to store that path. But there is no need, you can just simply go to that Excel. Suppose you are using this file repeatedly, just go and pin that Excel. So in whenever you will open new Excel, this path automatically Excel will show you on top. Okay, similarly this folder. Okay, so folder path, here also you can just click on that path. That path will be automatically pinned to the Excel, and in future it will helpful for you. Okay, so like I'll just show you how it will show this. Like this, you get the path immediately. Okay, so I'll just mute the background noise to, okay. Okay, I think it's okay now. Okay, so these are the how I think you understand how we can pin to the Excel and path. Okay, now I'll move to the save all. Anyways, we know that whenever we are adding any data, we are using save button. After that, save as. So in save as, if you see, there are file name and save type. Okay, so file name, we can enter as a file name. Suppose I am adding Excel. Okay, and here there is one more option, save as file. Okay, so save as file, in this, in which format you want to save this file, that you can understand from here. Because if you are just saving normal Excel, you can use this Excel वर्कबुक ऑप्शन. इफ यू आर एडिंग सम माइक्रोज, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ आप मैक्रो इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर उस फाइल में दूसरे टाइप का डेटा जैसे कि वेब हो या पीडीएफ करना हो, सीएसवी डेटा चाहिए, तो ये सारा आपका जो डेटा है वो हमें फाइल की जो साइज रहेगी वो चेक करने के लिए, यार वो फाइल का जो फॉर्मेट रहेगा वो चेक करने के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला ऑप्शन. ओके, so there are tools here, there are 2-3 options that will cover into advanced session, how to password protect and all. Okay, someone is okay, I'm hearing the background noise. Can you please mute yourself? Okay, thank you very much. So we'll move to the next topic, open. Okay, so here, from open, if you want to open the file from the specific location, you can just enter the path here. Okay, and you can open the file from that path. Okay, so I'll just open one file. This will be useful for our following topic. So I just open the one file here. So after that, close button, if you want to close the Excel, you can use this close function that will allow you to close the recent Excel, okay, which is open. Okay, after that we'll move to the just a second, we'll move to the recent we already covered, then new. So this is also an interesting topic because Excel Rahul, yes, Rahul, recent with folders we can focus on. In a recent tab, we have some folders as well. Okay, so okay. We didn't speak about those folders. Okay, no problem. So if you okay, so when you want to open one file from base, अगर आपको कोई भी फोल्डर से एक फाइल उठानी है, ओके, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि ओपन पे, हम नॉर्मली क्या करते हैं, ओपन पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम फोल्डर का जो पाथ है वो सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, और बहुत बार ऐसे होता है कि पाथ, हमने कुछ फाइल रहती है वो शेयर ड्राइव पे या फिर ऐसे फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, ऐसे बहुत सारे फोल्डर के अंदर रखते हैं और बाद में हमें वो पाथ जल्दी से मिलता नहीं. तो वो पाथ अगर हमें जल्दी से नहीं मिल रहा है तो हम उसको
हम एक्सेल की मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जाना है, फाइल्स पे, रिसेंट पे जाना है, और यहाँ पे उस फोल्डर का जो पाथ है वो पिन करके रखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी ड्राइव पे यूजर्स IBM के इसमें डेस्कटॉप करके स्पेस है, उस स्पेस पे एक्सेल ट्रेनिंग करके एक फोल्डर है, उसमें आपको जो भी फाइल चाहिए आप ओपन कर सकते हो। सिमिलरली ये मेरा डॉक्यूमेंट का है, कंपनी डॉक्यूमेंट, डायरेक्टर डॉक्यूमेंट। सिमिलरली यहाँ पे अकाउंट्स पेबल मैंने एक फोल्डर बनाया है 14 Feb 2020। अगर मुझे ये वाला चाहिए, मैंने यहाँ पे जस्ट पिन करके रखा और मैंने उस फोल्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे वो डायरेक्टली वो उस लोकेशन पे मुझे लेके जाएगा। ओके okay, so this is the use of recent tab. Okay, after that I'm going quite fast because we have to cover few topics and there are already people who know all very well Excel, so I'm just covering the small basic tips. Then we'll in detail we'll see advanced level training sessions. Okay, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है न्यू टैब। ओके, सो इन न्यू टैब एक्सेल के कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट रहते हैं। सो एक्सेल गिविंग अस अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट दैट आल्सो वेरी यूजफुल फॉर अस। सो सपोज यू हैव टू डू समथिंग लाइक यू वांट, मतलब आपको कुछ डेटा चाहिए जो कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट में मुझे मिलना चाहिए, मुझे उसके लिए वो फॉर्मेटिंग करने के लिए, वो सब करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक्सेल के कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, वो बाद में आप एक्सेल खोल के उसमें आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास क्या क्या प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, कैसे है। तो एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक टेम्पलेट है जो हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसेंट टेम्पलेट, अगेन सिंपल टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट्स एंड एग्जिस्टिंग फॉर्म। ओके, यहाँ पे भी नीचे कुछ बहुत सारे है, एजुकेशन रिलेटेड, इवेंट रिलेटेड, लॉग, स्पोर्ट, पर्सनल, पेरोल, okay, monthly. So I'll just go to one recent template which I already downloaded, that's why I'm using this personal monthly budget template. So when you click on that particular template, here there is one button. ओके, सो ये बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस पर क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी डेटा मैंने जस्ट क्रिएट किया था, डाउनलोड किया था, बट एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, आपको कैसे भरना है यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, हाय राहुल, यस कैन यू हियर मी? यस शिवांगी, यस, where we find this tab, new template? Okay, I'll show you again. Okay, no problem. Okay, so when you open new Excel, okay, once you open new Excel, you will see that there is a new tab here under the file section. There is a new tab. Okay, okay, in that new you will file all this template. Okay, so just, yeah, just you. to add on over here, ये क्यों यूज किया जाता है कि हमारे पास कभी कभी ऑलरेडी प्रिंटेड स्टेशनरीज रहती है। एक कंसेप्ट आई है कि ऑलरेडी आपके पास कुछ प्रिंटेड स्टेशनरीज रहती है, आपको वही फॉर्म्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक्सेल भी वैसे ही प्रिंटेड स्टेशनरीज यानी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हमें देता है, जो कि हम डे बाय डे में वर्क कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका ऑलरेडी एक फॉर्मेट डिफाइन होता है, आपके ऑलरेडी फॉर्मूला लगे हुए होते हैं, you just need to edit the data and use it. It avoids the repetition of work. That's why we can use the predefined templates. Okay, Yeah, okay. Thank you. Yeah, thank you. Okay, thank you Durgesh. So again I will open one predefined previous file. Okay, so I'll use this file, I'll simple data. Okay, in this next topic is our print. Okay, so in print you can see there are some options. When you click on the print, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ का। बहुत बार हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा जो एक्सेल है वो हमें पीडीएफ में चाहिए। ठीक है, एक्सेल में हमने डेटा बनाया है, बट हम एक्सेल में अगर डेटा सामने वालों को भेजेंगे तो सामने वाला उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर सकता है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम एक पीडीएफ के फॉर्मेट में, या फिर उसको हमें कभी कभी लेटर हेड पे प्रिंट करना हो, कुछ हो, तो हम इसे उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में करते हैं। तो हम कैसे कर सकते हो पीडीएफ में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मली हमारा प्रिंटर का पाथ यहाँ पे होता है। अभी मेरा प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरा प्रिंटर का यहाँ पे लोकेशन नहीं दिख रहा है।
ठीक है, बट आपको डायरेक्टली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ दिखेगा। अगर कुछ सिस्टम में पीडीएफ नहीं रहेगा तो उसके लिए आपको जो एडोब रीडर है, एडोब रीडर, वो आप इंस्टॉल कर दो अपने सिस्टम में। वो नॉर्मली आपके सेटअप के साथ ही रहता है, बट वो नहीं है तो आपको वो इंस्टॉल करना है। पीडीएफ है, उसके बाद एक्सपीएस है, वो भी एक फाइल मतलब लाइक पीडीएफ के जैसे ही डॉक्यूमेंट बनता है। वन नोट में भी आप उसको ट्रांसफर मतलब प्रिंट कर सकते हो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जैसे यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कुछ राइट हैंड साइड में प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, तो प्रीव्यू देख रहे हो कि मैंने सिलेक्शन कुछ नहीं किया वहाँ पे, इसके लिए मुझे छोटा ही डेटा दिख रहा है। बट देर इज वन मोर शीट हियर, वो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे शीट पे भी डेटा है। तो हमें वो थोड़ा सा ठीक से एक शीट पे दिखे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक छोटा सा सेट ये है वो हमें सेटिंग है वो हमें चेक करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं हम, देखो तो मेरा ये जो डेटा है मुझे एक पीडीएफ पे चाहिए। ओके, इतना जितना मैंने सिलेक्शन किया हुआ है अभी, ये डेटा मुझे एक पीडीएफ में एक ही पेज पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल पे जाके प्रिंट करूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्टिव शीट, वो सिलेक्शन वहाँ पे चेंज करके हमें क्या करना है, प्रिंट सिलेक्शन करना है। ठीक है, जैसे मैंने प्रिंट सिलेक्शन किया, जो हमारा जितना सिलेक्ट किया हुआ डेटा था एक शीट में हमें यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट कर दो तो ऑटोमेटिकली उसका एक पीडीएफ जनरेट होगा। पीडीएफ को नेम दे दो एक, ठीक है, तो वो पीडीएफ ऑटोमेटिकली जनरेट होके आप पीडीएफ में वो डेटा सेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये हुआ हमारा प्रिंट का ऑप्शन। ओके, प्रिंट में ये बाकी के भी ऑप्शन है, मार्जिन वो सब, बट वो थोड़ा सा अभी के लिए ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने सब पीडीएफ वाला दिखाया, क्योंकि जो हमें नॉर्मली हम जिसका यूज कर सकते हैं वो टॉपिक में अभी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको डिटेल में इसका हमें देखना है तो बाकी हमारे पास पेज फॉर्मेटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें बाकी का भी हमें मिल जाएगा कि पेज लेआउट का जो ये टॉपिक है इसमें हमें बाकी डिटेल्स हमें मिल सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक इसमें से कवर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा सेव एंड सेंड। तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैंने अभी एक एक्सेल बनाई है, बट वो एक्सेल में मुझे सेंड करनी है ईमेल में अटैच करके। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है कि वो एक्सेल का पाथ नहीं पता होता, या फिर मैंने काम किया और जस्ट FYI करके एक्सेल शीट भेजनी है, तो हमें वो पता नहीं है कि कैसे, मतलब हम क्या करेंगे, पहले सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर वो पाथ पे जाके सेंड करेंगे। बट इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड सेंड का एक ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंड यूजिंग ईमेल, और यहाँ पे है सेंड एज ए अटैचमेंट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक आपका ईमेल जनरेट होगा। ठीक है, आपका आउटलुक रहेगा, उसमें न्यू ईमेल जनरेट होगा, और वो न्यू ईमेल में, अभी मेरा आउटलुक ओपन नहीं है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट आपका आउटलुक ओपन रहेगा ना तो इमीडिएटली वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि जो मैंने फाइल सिलेक्ट की थी या जो फाइल मेरी ओपन है उस पर वो अटैचमेंट में डायरेक्टली वो फाइल अटैच हो गई, और उसका नेम क्या आया, सब्जेक्ट भी देखो, उस फाइल का जो नेम रहेगा वो आया। और मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मुझे अगर भेजना है समझो दुर्गेश, तो मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला और सेंड कर दिया। सो इतने मतलब ऐसे इजीली हम उस फाइल को इमीडिएटली आउटलुक में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बट आपका जीमेल या याहू उस ईमेल पे डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, उसके लिए आपका आउटलुक का सेटअप होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब भी वो जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, एक ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेल के ऑप्शंस। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एक्सेल के ऑप्शंस में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट हम इसमें से एक दो ही चीजें कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा बेसिक लेवल की है, वो कवर कर रहा हूँ, बाद में बाकी के करता हूँ। ठीक है, तो जनरल, ओके, जैसे हमने क्लिक किया, फिर से एक बार मैं पाथ दिखाता आपको, फाइल, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑप्शंस करके। ठीक है, फीचर्स है, तो ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टैब दिख रहे हैं। तो उसमें से जनरल में मैं गया। अभी मेरी जो एक्सेल की जो थीम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर की थीम है बैक साइड में, बट मुझे लगता है कि ठीक है, मेरा अभी मुझे थोड़ी डार्क थीम चाहिए जो एक्सेल की, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, और जैसे मैंने ब्लैक कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देख सकते हो कि मेरा एक्सेल का जो बैकग्राउंड था वो पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तो एक आपको देखने के लिए एक अलग व्यू मिलेगा एक्सेल का। और आप कभी डार्क मतलब ब्राइटनेस में काम कर रहे हैं या फिर थोड़ा लो लाइट में काम कर रहे हैं, तो उस समय आप इस तरह आपका जो एक्सेल है उसका थीम चेंज कर सकते हो। वो आपको एक व्यू मिलेगा, अच्छा व्यू करने के लिए या फिर डिजाइन करने के लिए आपको यूज होगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा नाम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है यूजर नेम एज अ, ठीक है। तो आप भी आपका नाम यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि अगर मुझे चेंज करना है तो मैंने IBM करके यहाँ पे ओके कर दिया, तो मेरा ये नाम का भी हो जाएगा। अब नॉर्मली और एक यहाँ पे फंक्शन है इंक्लूड दिस मेनी शीट्स, ओके। सो ये फंक्शन क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। तो नॉर्मली कभी भी हम नया एक एक्सेल खोलेंगे, अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक नया एक्सेल खोला, तो उसमें कितने शीट मिले मुझे, 3 शीट ऑटोमेटिकली मिल गए, ठीक है। बट कुछ केस में मुझे ऐसे चाहिए कि मुझे नया एक्सेल खोलूँ तो मुझे एक ही शीट चाहिए, या नया एक्सेल खोलूँ तो मुझे 10-12 शीट एक साथ चाहिए। तो ये जब भी सिनेरियो रहेगा तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाओ, ठीक है, ऑप्शंस में जाके जो पहला हमारा टैब है जनरल, जनरल में जाके यहाँ पे आप इंक्लूड द दिस मेनी शीट्स, तो यहाँ पे आप जस्ट टाइप कर लो 10 और ड्रॉप डाउन से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, और ओके कर दो। तो जब भी आप नया शीट खोलोगे तो नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली आपको 10 शीट मिलेंगे यहाँ पे नीचे बने बनाए, आपको इंसर्ट करने की, शीट इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में, ठीक है। तो जब भी आप नया एक्सेल खोलोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको 10 ही शीट मिलेंगे उसमें। बट अभी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे हर बार सिर्फ एक ही शीट चाहिए, जो कि बहुत बार क्या होता है 2-3 शीट एक्स्ट्रा बन जाते हैं, फिर लोगों को समझ में नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज करके सिर्फ यहाँ पे 1 शीट रखो, ठीक है, ताकि उससे आपका साइज भी डेटा का कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अभी मैं नया शीट बना रहा हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है, मेरी एक ही शीट बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आपने फाइल का नेम दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बुक 4 मेरी बनी है, वो एक ही इसका बना है, और पहले जो थे बुक 3 उसमें 10 शीट थे ऐसे। तो अगर हमें शीट नंबर ऑफ शीट कम ज्यादा करना है तो हम वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉरी वन मोर टॉपिक फॉन्ट का। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मेरा जो फॉन्ट है एक्सेल का, या फिर जो फॉन्ट की साइज है वो कंटिन्यूसली जब भी मैं एक्सेल ओपन करूँ वो फिक्स रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके वो सेटिंग चेंज करके रख सकते हो एक्सेल की। तो आपको फ्यूचर में जब भी आप नया एक्सेल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉन्ट और वो साइज मिल जाएगी एक्सेल की, ठीक है। नॉर्मली ये यूज होगा जब भी आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए एक्सेल के लिए, या फिर बहुत सारे लोग टाइम्स ऑफ रोमन यूज करते हैं, तो वो वाला अगर चाहिए तो हमें यहाँ पे हम जाके फॉन्ट चेंज करके रखो, यहाँ पे आपको सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो आप जस्ट सिंपली नेम कीबोर्ड से टाइप करो, यहाँ पे आपको फॉन्ट मिल जाएगा और आप सिलेक्ट करके रखो, तो जब भी आप नया एक्सेल ओपन करोगे वो फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, जो फॉर्मूलाज का सेक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो आई विल कवर इनटू एडवांस लेवल नेक्स्ट फॉलोइंग सेशंस, ओके। प्रूफिंग सेम एज अ प्रूफिंग, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग और वो सब है, तो वो भी बाद में कवर कर लूंगा। इसमें हमें सेव का ऑप्शन एक देखना है, ठीक है। तो जब भी हमें कोई भी नया एक्सेल हमने खोला है, ठीक है, और वो कहीं पे स्टोर करना है, तो हमारे उसका एक पाथ डिफाइन होना चाहिए कि जो पाथ है उसका, ये फाइल कहाँ पे मुझे सेव होनी चाहिए। अगर हर बार आपको लगता है कि नहीं मेरा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही डेस्कटॉप पे होना चाहिए, या फिर मेरे सी ड्राइव के एक फोल्डर है उसमें होना चाहिए, तो मैं उसमें क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरा पाथ है वो चेंज करके रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाथ चेंज कर दिया तो डायरेक्टली वो जो फाइल है उस लोकेशन पे सेव हो जाएगी। अगर आपको पाथ एंटर करना है तो आप कोई भी एक यहाँ पे फोल्डर ओपन करो, यहाँ से ये पाथ कॉपी कर दो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है एंड में और पूरा सिलेक्ट कर दो, बाद में कॉपी करके आप उसको लेके जा सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे आपने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नॉर्मली हम पेस्ट के लिए यही शॉर्टकट यूज करते हैं, तो कंट्रोल सी कर दिया वहां से और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया, तो हमने ये सेव कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नया एक्सेल खोल के उसमें सेव का बटन दबाऊंगा तो डायरेक्टली वो चला जाएगा इस पाथ पे, ये लोकेशन पे, ठीक है। उसके बाद हेलो सर, वन क्वेरी। yes, तो अगर हमेशा अगर हम